Hello students, I am your teacher for this lecture. Today we are going to continue with our topic of quadratic equations. In the last few lectures we've been doing graphical part of quadratic equations like location of real roots, when are roots positive, when are negative, alright, when are roots of opposite sign. So all these things we've been doing. Now in today's lecture, like we say the chapter name is quadratic equations, that means we talk about the equation in which degree of equation is 2, that means maximum power of x is 2. But you know, in competitive exams you do get questions like in which you have biquadratic equations in which degree of equation is 4, that means maximum power of x is 4, or you get questions on cubic equations and very rarely some higher power also. Alright, so we have to discuss that also. Okay, so today the first thing that we are going to do in this lecture would be polynomial equations of higher degree. Alright, so let's start. So the first thing that we are going to do today is polynomial equations of higher degree. So polynomial equations of higher degree. Now first of all I will take in general degree n and then we will do specific cases, alright, of higher degree. So we are going to take degree n, alright, that means maximum power of x is going to be n. So I can write in general that equation as, say, a naught x raised power n plus a1 x raised power n minus 1 plus a2 x raised power n minus 2, so on, a n minus 1 x and plus a n equal to 0. So this can be taken as polynomial equation of degree n. You can see maximum power of x is n, and if we want that maximum power of x should be n, then of course condition should be that a naught should not be equal to 0, and moreover all these are constants, a naught, a1, a2, an, all these are constants. Alright, so this is a polynomial equation of degree n. Now if it is a polynomial equation of degree n, it is going to have n roots. Alright, so a polynomial degree of equation n has n roots. Now some of the roots may be real, some may be imaginary, sometimes all are imaginary, sometimes all are real. Alright, so it will depend upon the equation, but this thing is definite that any polynomial equation of degree n has n roots. Now let me tell you one more thing over here. Suppose you have a polynomial equation of degree n and it has more than n roots, then what is it? Then it is not an equation, then it will be called as an identity, and in that case it will become true for all values of x. Alright, so let me write it as a note. It is a very important point, so let us write it as a note. What is the note? That if a polynomial equation of degree n is satisfied by more than n values of x, if the equation is in terms of x, right, then it is an identity. तो आइडेंटिटी वही होती है बेटा जो एक से ज्यादा वैल्यूज के लिए ट्रू होती है. ओके, देन इट इज एन आइडेंटिटी. So that is the basic difference between equation and identity. So what is an identity? An identity is true for, it will be true for then all values of x. Is it okay? For example, let me take an example. We take quadratic equation only. Now for example, I have ax square plus bx plus c equal to 0. Okay, we know it is a quadratic equation, and how many roots it will have? 2 roots. Now suppose it has more than 2 roots. ठीक है? If above equation has more than 2 roots, ठीक है, अगर इसके more than बेटा 2 roots हो जाएं, then it becomes an identity.
ठीक है, तो ये क्या बन जाती है, आइडेंटिटी बन जाती है। और इसका मतलब ये हर वैल्यू के लिए ट्रू हो जाएगी। और अगर ये आइडेंटिटी बन गई and it will be true for all values of x, as we say it will be then true for all x, तो उसमें क्या होगा, आपके a, b और c तीनों क्या होंगे, 0 होंगे। then we are going to have this condition a, b, c all will be equal to 0, क्योंकि आप देखो आपके पास इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। अब आप x जो मर्जी डालो, इक्वेशन इज ऑलवेज ट्रू, इजंट इट। तो आइडेंटिटी में सारे आपके कांस्टेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसी तरह ये देखो, जैसे हम ये बोल रहे हैं ना पीछे कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n अगर हमारी आइडेंटिटी है, दैट मीन्स इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। और इस केस में बेटा क्या होगा कि हमारे जितने भी ये कांस्टेंट्स हैं, a0, a1, a2, all these will be equal to 0 in that case. Let me give you an example over here. Suppose हमारे पास एक example लेते हैं। मान लो हमें ये कहा जाए कि हमारे पास we have suppose this an equation that lambda square minus 5 lambda plus 6 into x square and then plus lambda square minus 3 lambda plus 2 into x and plus lambda square minus 4 equal to 0. Now suppose we have to find lambda such that it is an identity. ठीक है, हमें कहा जाता है कि लैम्डा निकालो और ये आइडेंटिटी है मान लो। तो आप क्या करोगे, जैसे हमने कहा आइडेंटिटी कब होती है बेटा, यू कैन सी इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज 2। तो आइडेंटिटी है तो ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं बेटा ऑल विल बी इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली। ये देखो ए बी सी सारे के सारे 0 होने चाहिए, तो पुट करते हैं इनको 0 और ऐसी कोई वैल्यू लैम्डा की ढूंढते हैं जिनके लिए तीनों इकट्ठे 0 बन रहे हैं। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 0 हो गया। इसको फैक्टराइज करोगे, देखो क्या आएगा, लैम्डा माइनस 2 इंटू लैम्डा माइनस 3 0। तो लैम्डा की देखो दो वैल्यूज आ गई 2,3। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 पुट करते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस विल गिव अस वैल्यूज ऑफ लैम्डा एज 1 एंड 2। तीसरा देखो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करोगे तो यू विल हैव लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इस केस में लैम्डा की दो वैल्यूज क्या आ गई, माइनस 2 एंड 2। तो ऐसी क्या कोई कॉमन वैल्यू है जिसके लिए तीनों हमारे कांस्टेंट्स या कोफिशिएंट 0 हो? ये देखो 2, लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए आपके तीनों 0 हो गए। सो दिस इक्वेशन विल बिकम एन आइडेंटिटी इफ यू हैव लैम्डा इक्वल टू 2। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट वी हैव। तो कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन बेटा डिग्री n में होती है तो उसके n रूट्स होंगे। They may be all real, all complex, some real, some complex, all right? But if it has more than n roots, then it becomes an identity. In that case, it will be true for all values of x, and moreover, all the constants or the coefficients will become 0. Got it? अब देखो हम polynomial equations of higher degree की बात कर रहे थे। अब जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऑलरेडी कर ली है, ठीक है। देखो जैसे फर्स्ट केस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लेते हैं, लेट अस रिकॉल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्या ले रहे थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सपोज इट हैज टू रूट्स अल्फा एंड बीटा। अब मान लो s1 से हम डिनोट करते हैं बेटा सिंगल रूट का सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा। अब ये क्या था, रिमेंबर पहली टर्म छोड़ के साइन लगाओ अल्टरनेटली माइनस एंड प्लस। तो सिंगल रूट का सम अल्फा प्लस बीटा वॉज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब ये हमारा माइनस के साथ लेना है और डिवाइडेड बाय ए। ऑब्वियसली ए नॉन जीरो होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ए कैन कम इन द डिनोमिनेटर। और S2 मतलब दो का प्रोडक्ट एट अ टाइम, जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कहते हैं, P से भी डिनोट करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा। दिस इज इक्वल टू C अपॉन A।
तो ये वाला c अब प्लस साइन के साथ लेना है एंड देन डिवाइडेड बाय। तो ऑल्टरनेटली पहली टर्म को छोड़ के जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है उसको छोड़ दो। उसके बाद अगर आपने सारी टर्म्स डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में लिखी है ना, तो पहली टर्म छोड़ के ऑल्टरनेटली प्लस माइनस लगाते जाओ एंड वी कैन कीप ऑब्टेनिंग दीज सम्स। लेट मी टेक द नेक्स्ट वन। ये तो हमें पता ही है, इसके हमने क्वेश्चंस भी किए। नाउ लेट मी टेक ऑफ डिग्री 3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी डिग्री किसमें है? 2 में है। नाउ लेट अस टेक क्यूबिक इक्वेशन। अब हम लेते हैं हमारी क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन हमारी डिग्री 3 में होगी बेटा। तो इन जनरल हम क्यूबिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे? देखो, इट वुड बी लाइक ax क्यूब, let me write below, so it would be ax cube plus bx square plus cx and plus d equal to 0। तो ये स्टैंडर्ड हमारी क्यूबिक इक्वेशन हो गई जिसमें ऑफ कोर्स a will be non-zero। Now since it is a cubic equation, it is of degree 3, तो it will have 3 roots। Suppose 3 roots are alpha, beta and gamma। Now let us see what are the results। अब बिल्कुल जैसे क्वाड्रेटिक में किया था ना, मैंने आपको बताया पहली वाली जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसको छोड़ दो, उसके बाद ऑल्टरनेटली साइन लगाओ, माइनस प्लस और माइनस। अब देखो S1 से डिनोट करेंगे, 1 का मतलब सिंगल रूट का सम, तो दैट विड बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, 3 रूट्स हैं तो इट विल बी माइनस बी अपॉन ए। फिर S2 पे आ जाते हैं, इट विल बी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब ये क्या होगा? जैसे पहला माइनस बी अपॉन ए था, अब C प्लस के साथ, तो इट विल बी प्लस C अपॉन ए। इसमें S3 भी आएगा, तीनों का प्रोडक्ट एट अ टाइम, अल्फा बीटा गामा, तो इट विल बी माइनस डी अपॉन ए। ठीक है ना, ये देखो d के ऊपर माइनस है, तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस डी अपॉन ए। All right, so these results are used in solving questions। एक और लेते हैं अगली, biquadratic, that means degree 4। So let me take the third one, biquadratic equation, right? So biquadratic equation will have degree 4, is it all right? It will have degree 4। तो in general देखो biquadratic equation हम कैसे लिखेंगे? ax4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। मैक्सिमम पावर x की 4 आएगी, राइट, बिकॉज इट इज इन डिग्री 4। नाउ अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लीव द फर्स्ट टर्म हाईएस्ट डिग्री वाली, और सारी टर्म्स देखो डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में होनी चाहिए, यू हैव टू इंश्योर दैट। फिर ऑल्टरनेटली माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट। अब देखो क्योंकि डिग्री 4 में है तो हाउ मेनी रूट्स इट विल हैव? 4 रूट्स। तो मान लो 4 इसके जो रूट्स हैं, लेट 4 रूट्स बी अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब देखो क्या क्या रिजल्ट्स हैं। ओके, नाउ लुक एट द फर्स्ट रिजल्ट S1। S1 मींस सिंगल रूट का सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो इट विल बी दिस माइनस बी अपॉन ए। बी के ऊपर माइनस है ना, तो इट इज माइनस बी अपॉन ए। अब देखो S2 का मतलब 2 का प्रोडक्ट एट अ टाइम, तो जितने केसेस बनेंगे वो सारे लेने हैं, 2 के प्रोडक्ट के, और उनको ऐड करना है। तो वी विल हैव अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा एंड देन गामा डेल्टा, और कितना आएगा? प्लस सी अपॉन ए। तो दिस सम इज गोइंग टू बी प्लस सी अपॉन ए। तो 2 सफिक्स का मतलब क्या है? 2 का प्रोडक्ट एट ए टाइम लेके ऐड कर रहे हैं। S3 देखो अब क्या होगा, लेट अस नाउ फाइंड S3 ओवर हियर। तो S3 का मतलब 3 का प्रोडक्ट एट ए टाइम लेना है, तो आई विल हैव अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा and plus beta gamma delta। तो these 4 cases will be there। तो जितने possible cases हैं we have to take all। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस d अपॉन ए, ऑल्टरनेटली है ना, तो now it will be माइनस d अपॉन a, it will be this। और इसमें S4 भी होगा क्योंकि 4 रूट्स हैं, तो चारों का प्रोडक्ट भी आएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो E के ऊपर प्लस साइन है, लुक हियर, तो इट विल बी E अपॉन ए।
So these are the results that we have in these kind of equations. Okay, cubic ho, biquadratic ho, and similarly we can continue this for whichever degree that we want. Okay, let's do some questions based on these equations of higher degree. अब पहला क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है? You see the first question on your screen now. It says number of real roots. तो real roots हमें चाहिए. We'll see to it. Of which equation? This one. E raised power 4x plus e raised power 3x minus 4 into e raised power 2x plus ex plus 1 equal to 0. कितने real roots होंगे वो बताने हैं. And you can see this is from JEE Mains 2020. तो हायर डिग्री इक्वेशन के क्वेश्चंस हमारे आते हैं. तो लेट्स डू द सॉल्यूशन फॉर दिस. ऑलराइट, अब देखो पहली इक्वेशन लिखते हैं पहले हम. इट इज ई रेज पावर 4x प्लस ई रेज पावर 3x माइनस 4 इंटू ई की पावर 2x प्लस ई रेज पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब सबसे पहले काम करते हैं, थोड़ा देखने में इक्वेशन हमें इजी लगे. लेट अस टेक e रेज पावर x एज t. लेट अस टेक दिस सब्स्टिट्यूशन. तो इक्वेशन क्या बन गई? t रेज पावर 4 प्लस टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस t एंड प्लस 1 इक्वल टू 0. तो यू कैन सी इट, दिस इक्वेशन इज इन डिग्री 4. तो बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब आप इसमें ना एक चीज ऑब्जर्व करो, ठीक है? और ये ध्यान रखना, जैसे ये टर्म देखो T4, इसका कोफिशिएंट कितना है? 1. और लास्ट टर्म का भी कोफिशिएंट 1 है, देख रहे हो? तो इन दोनों टर्म्स का हमारा कोफिशिएंट क्या है? सेम है. फिर अगली टर्म T क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? 1. और T का भी कोफिशिएंट यहां पे 1 है. तो इन दोनों टर्म्स का भी कोफिशिएंट सेम है. जब आपके पास टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड में कोफिशिएंट सेम होता है ना, तो इस टाइप की बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का देखो क्या तरीका होता है. व्हाट वी डू इज, जैसे जो मिडिल टर्म है ना ये 4t स्क्वायर विद माइनस 4t स्क्वायर, तो वी विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाय t स्क्वायर. देखो इसका क्या फायदा होगा, है ना? अगर पूरी इक्वेशन को हम t स्क्वायर से डिवाइड कर दें, वी आर गेटिंग t स्क्वायर प्लस t माइनस 4 plus t upon t square will be 1 by t and 1 upon t square is equal to 0. अब ऐसा क्यों किया है हमने? Why are we dividing by t square? Look at this. We are going to combine first and last term. इनको इकट्ठा एक ब्रैकेट में लिखो, t square plus 1 upon t square. फिर ये सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड कंबाइन करते हैं. तो we have t plus 1 by t and then मिडिल टर्म माइनस 4 इक्वल टू 0. तो मेरे पास इक्वेशन की फॉर्म ना ये आ गई. अब पता है इसमें एक सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे ना, तो इट विल बी इजियर फॉर अस टू सॉल्व. अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व दैट बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन. वी डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट फॉर्मूला और हिट एंड ट्रायल विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. इरेशनल रूट्स भी हो सकते हैं ना, रैशनल भी कोई नंबर हो सकता है. तो हाउ वी विल थिंक कि कौन से रूट्स हैं. अब यहां पे देखो, लुक एट दिस टर्म t प्लस 1 बाई टी. इसको देखो अगर हम कुछ पुट करते हैं, लेट अस पुट इट टू बी इक्वल टू y. तो हमें अगर इक्वेशन में इस टर्म को y से रिप्लेस कर रहे हो, तो ये वाली टर्म पहली वाली भी तो y की टर्म्स में होनी चाहिए ना. अब आप देख रहे हो उसमें स्क्वेयरिंग है, तो दैट शुड गिव अस द हिंट कि यहां पे हम करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. ऑलराइट, लेट अस डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. तो देखो क्या मिल रहा है, t स्क्वेयर plus 1 upon t square plus 2 times t into 1 by t is equal to y square. Now look here, in the third term t is getting cancelled. तो यहाँ पे ये 2 को right side पे ले जाओ, तो we are getting t square plus 1 by t square can be replaced by y square minus 2. Is it okay? तो अगर हमने पहली टर्म को y से रिप्लेस किया है, तो ये टर्म किससे रिप्लेस हो रही है? y square minus 2 से. अब देखो इक्वेशन क्या बन गई. नाउ आवर इक्वेशन बिकम्स y स्क्वायर माइनस 2 प्लस y एंड माइनस 4 इक्वल टू 0. ये आ गई. इसको सॉल्व करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है y स्क्वायर प्लस y एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेट अस स्प्लिट द मिडिल टर्म. सो इट कैन बी रिटन एज y स्क्वायर प्लस 3y
माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन है देखो फर्स्ट टू टर्म्स में, है ना, y कॉमन है। अब इजी लग रही है ना, अब हमारी नून सी इक्वेशन आ गई, वी आर इन अ फेमिलियर टेरिटरी। तो अब हम फटाफट भागते हैं अपनी फेमिलियर टेरिटरी में। तो y इंटू वाई प्लस 3 माइनस 2 वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। पता है जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना बेटा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को एकदम शुरू से स्पीड नहीं पकड़नी चाहिए, बिकॉज वी मे मिस एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द क्वेश्चन। तो कभी भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, उसमें जो भी लिखा हुआ है, और एक नजर ऑप्शंस पे भी डालो। कई बार क्या होता है, कुछ हिंट आपको ऑप्शन से ही मिल जाती है। एक बार आपको दिमाग में पता चल गया कि हाँ ये क्वेश्चन है, और क्लिक हो गया कि हाँ इसको इस तरह से करना है, स्टार्ट डूइंग इट, और जब लगे अब फेमिलियर टेरिटरी आ गई, फिर स्पीड पकड़ लो। इज इट ऑल राइट? यू शुड ऑलवेज डू दैट। सो आई हैव, क्योंकि स्पीड का भी ख्याल करना है बेटा और एक्यूरेसी का भी, है ना, बोथ द थिंग्स शुड गो साइड बाय साइड। तो आई हैव टू वैल्यूज -3 या फिर 2। अब देखो y था क्या, t प्लस 1/t। तो पहला केस हो गया t प्लस 1/t इज इक्वल टू -3, या फिर t प्लस 1/t इज इक्वल टू 2। लेट्स सॉल्व। अब पहले केस में अगर आप एलसीएम लेते हो तो t² प्लस 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये आ गया। व्हाट आर वी गेटिंग? t² प्लस 3t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो हमने t क्या था हमारा, यहां पे ये था ना t प्लस 1/t वॉज y, उसको लिया है, और t था e की पावर x। अब आप एक चीज नोटिस करो, अच्छा यहां पे हमें इसको ना आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप ऐसे सोचो कि t हमारा था e रेस पावर x, क्योंकि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में थी ना e रेस पावर x में, एंड रिमेंबर ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर t हमेशा पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, 1/t भी पॉजिटिव होगा। और अगर आप दो पॉजिटिव क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो तो वो नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता ना, तो इट विल बी पॉजिटिव ओनली। तो इसका मतलब ये वाला जो केस है t प्लस 1/t माइनस 3, ये हमें यहीं से पता चल गया कि ये रिजेक्ट हो गया। तो हमें इसको सॉल्व करने की एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं है। इज इट ऑल राइट? तो यहीं पे हम ये केस क्या कर देते हैं बेटा, रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्शन का ठप्पा लग गया। दूसरा केस लेते हैं, ठीक है। अब t प्लस 1/t 2 पॉसिबल है, क्योंकि हमने कहा है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 2 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। लेट्स सॉल्व। आई गेट t² प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स t। तो आई हैव t² माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया है ना, t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 0, दैट मीन्स t माइनस 1 विल बी 0। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब रिमेंबर व्हाट वाज t, e रेस पावर x। तो e रेस पावर x इज इक्वल टू 1। तो कब होगा ये, व्हेन x इज 0। तो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन दैट वी आर गेटिंग, ठीक है ना। तो हमारे पास ये 1 रियल सॉल्यूशन आया है, x is equal to 0. All right, so let us check the option. So when x is 0, the given equation will be satisfied. All right, तो number of real roots पूछ रहे हैं आप, देखो तो 1 real solution आया है ना, ये देखो we have 1 real solution। तो number of real roots पूछे हैं, तो 1 real solution है, that means C option will be correct. So this equation has 1 real root. Got it? तो डिग्री 4 में इक्वेशन बनी, और हमने ऑब्जर्व किया कि कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड सेम है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो बेटा। तो हमने क्या किया, t² से डिवाइड कर लिया, जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड किया। देन वी टुक दिस सब्स्टिट्यूशन t प्लस 1/t एज y। तो यू गॉट अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y which gave us 2 values of y which are -3 and 2। -3 रिजेक्ट हो गया क्योंकि हमने कहा t प्लस 1/t पॉजिटिव है, और 2 लेने पे हमारे पास e रेस पावर x या t1 आ गया, तो x हैज टू बी 0। गॉट इट? लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। अब इसको देखो, इसमें क्या लिखा है, वी आर गिवन इफ 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब देख रहे हो ये क्यूबिक इक्वेशन है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूबिक इक्वेशन। इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी वर टॉकिंग अबाउट बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें कहा है एक रूट आपको दिया है 3 + 2 आयोटा, तो क्योंकि क्यूबिक है, याद है ना इसके 3 रूट्स होंगे, तो आपको अदर रूट्स पूछ रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी हाउ टू डू इट।
First of all, obviously we are going to write the equation. So I have x cube minus 7x square plus 19x and minus 13 is equal to 0. अब ये क्यूबिक इक्वेशन है. Let three roots be अल्फा, बीटा एंड गामा. एक रूट आपको दिया हुआ है, ये 3 + 2 आयोटा. लेट इट बी अल्फा, तो मान लो अल्फा हो गया 3 + 2 आयोटा. अब देखो, आपको याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम एक बात कहते थे कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है और ए बी सी हमारे अगर रियल नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो अगर एक रूट अल्फा होता है p + आयोटा q, तो आपको याद होगा नेचर ऑफ रूट्स में किया था, दूसरा रूट क्या होता है? यस, p - आयोटा q, है ना, उसका कॉन्जुगेट होता है ना. तो यहां भी आप देख रहे हो कोफिशिएंट्स रियल हैं. जैसे x³ का कोफिशिएंट कितना है? 1. तो ऑल दीज कोफिशिएंट्स आर रियल, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है. तो इसमें अगर एक रूट आपका अल्फा ये है, तो अदर रूट बीटा बेटा इसका कॉन्जुगेट होगा 3 - 2 आयोटा. तो दूसरा रूट हमारा ये आ गया. इज इट ओके? अब तीसरा रूट चाहिए. उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं कि S1 याद है, सम ऑफ रूट्स, सिंगल रूट का सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. याद है ना क्या करना था? पहली वाली टर्म छोड़ के साइन लगाना था, माइनस प्लस माइनस. तो इसके लिए हमें खाली ये देखना है. तो ये कितना हो गया देखो, माइनस ऑफ -7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस b अपॉन a, रिमेंबर. सो इट इज इक्वल टू 7. अब हमारे पास अल्फा बीटा है, तो पुट करते हैं यहां पे, है ना. अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और गामा निकल आएगा. तो लेट अस पुट. तो अल्फा इज 3 + 2 आयोटा, बीटा इज 3 - 2 आयोटा एंड प्लस गामा इज इक्वल टू 7. 2 आयोटा कैंसिल हो गया, तो गामा इज इक्वल टू 7 - 6, दैट इज इक्वल टू 1. सो व्हाट आर द अदर टू रूट्स, बीटा और गामा? एक रूट है 3 - 2 आयोटा और दूसरा गामा, दैट इज 1. सो दीज आर द अदर टू रूट्स, राइट? सिंपल. लेट्स चेक द ऑप्शंस. 3 - 2 आयोटा 1, सो यू कैन सी बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. ठीक है ना, पता चला? तो इसमें बी ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी, राइट? अगला देखें क्वेश्चन. लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ. इसमें देखो क्या बोल रहे हैं, द वैल्यूज ऑफ a एंड b. अब देखो ये इक्वेशन, अगेन इट इज अ बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना. x डिग्री 4 है, x4 + 12x³ + 46x² + ax + b = 0. ये क्या है? स्क्वायर ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. तो अगर ये किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का बेटा स्क्वायर है ना, तो इसमें आप नोटिस करोगे हमारे पास दो अननोन्स हैं, a और b. तो वो आपने बताने हैं कि क्या होंगे. अब देखो इस टाइप के इक्वेशन को कैसे करना है. ऑलराइट, बिकॉज इक्वेशन हमें पूरी तो दी नहीं है ना बेटा, उसमें अननोन्स हैं. तो आई हैव this equation as x4 plus 12x³. So just a moment. So equation is x4 plus 12x³ plus 46x² plus ax and plus b equal to 0. अब ध्यान से देखो हमें क्या बोला है कि अगर ये जो है लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन ये वाला, इट इज स्क्वायर ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो a और b क्या होंगे? अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन जनरल तो ऐसा होता है ना, ax² + bx + c. अब देखो अगर हम इन जनरल ऐसा लेंगे, मान लो ax² + bx + c और उसका होल स्क्वायर, तो जब स्क्वेयरिंग करोगे ना, यहां पे पहली टर्म आपकी आ जाएगी a² x4. और आप इसमें नोटिस करो x4 का कोफिशिएंट 1 है. एक तो हम a और b नहीं लेंगे ऑब्वियसली बिकॉज दे आर इन्वॉल्व्ड इन द क्वेश्चन, वी विल टेक सम अदर कांस्टेंट्स. बट पहले इतना समझो, इन जनरल अगर आपने ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिया और उसका स्क्वायर कर रहे हो, तो x² का कोफिशिएंट क्या है? a² x4 का, जबकि यहां पे 1 है. इसका मतलब यहां पे जो भी हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेंगे उसमें बेटा x² का कोफिशिएंट 1 है. तभी स्क्वेयरिंग करने पे आपका इस टर्म में भी x4 का कोफिशिएंट क्या आएगा? 1 आएगा. ऑलराइट, सो वी कैन से दैट लेट, तो इसको हम हटाते हैं, ठीक है, और इसको करते हैं आगे.
तो यहां पे हम ये ले लेंगे, लेट x4 प्लस 12x³ राइट प्लस 46x² और प्लस ax प्लस b इक्वल टू, अब जैसे मैंने कहा जो हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेने वाले हैं उसमें x² का कोफिशिएंट 1 लेना है, तो वी कैन टेक इट टू बी x², कोई और सिंबल्स ले लो b और c की जगह, px प्लस q ले लेते हैं, मान लो उसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। रीजन पता चल गया ना, x² का कोफिशिएंट 1 क्यों लिया, क्योंकि यहां पे x4 का कोफिशिएंट 1 था। अब आप राइट साइड ओपन करो, ओके तो राइट साइड हम ओपन करते हैं, लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम सबको पता है, ठीक है, क्या था देखो एक बार लिख लेते हैं यहां पे, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, it was a square plus b square plus c square, right? Identity everyone knows, 2ab plus 2bc और plus 2ca, यही होता है। तो इसको अलग से पहले चाहे आप ओपन कर लो आप, तो what is x² plus px plus q का होल स्क्वायर, let us open, we will have x4 plus p² x² plus q², right? and then plus 2ab वाली टर्म क्या हो गई, 2px³ प्लस 2bc वाली टर्म हो गई 2pqx और 2ca वाली टर्म 2qx²। लाइक टर्म्स कंबाइन करते हैं, x4 वाली देखो एक ही टर्म है, फिर x³ वाली भी एक टर्म है, जैसे x4 वाली एक थी 2px³। अब नोटिस करो बेटा x² वाली आपके पास दो टर्म्स हैं, ये टर्म और ये टर्म है ना, तो लेट अस कंबाइन, सो वी हैव p² प्लस 2q इंटू x², फिर x वाली एक ही टर्म है 2pqx, राइट, एंड देन कांस्टेंट टर्म भी एक है q²। नाउ नोटिस वन थिंग, अब इस एक्सप्रेशन को हम कंपेयर करने वाले हैं इससे, क्योंकि वही तो है, ये राइट साइड को एक्सपैंड किया है, तो वी विल कंपेयर द कोफिशिएंट्स एंड ऑब्टेन वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है, तो इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट, x4 का तो देखो कोफिशिएंट सेम है ना, अगर वो a उसको भी हम कुछ और लेते फिर इक्वेट करते और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, 3 अननोन्स आ जाते, अभी तो 2 ही अननोन्स हैं देखो p और q, है ना। नाउ let us see coefficient of x² is already same, let us compare coefficient of x³ first। अब इस वाले में, ऊपर वाले में देखो x³ का कोफिशिएंट है 12 और यहां पे 2p, तो I get 2p equal to 12, that means I get value of p as 6, p की वैल्यू 6 आ गई। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, x² का कोफिशिएंट कंपेयर करो, यहां पे देखो 46 है और इधर कितना है p² प्लस 2q, सो आई हैव p² प्लस 2q इक्वल टू 46। अब p की वैल्यू पता है, वो यहां डाल दो, तो व्हाट आर वी गेटिंग, 36 प्लस 2q इज इक्वल टू 46। लेट अस सिंप्लीफाई, I get 2q is equal to 10, this gives me value of q as 5, ठीक है ना, q की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब आगे चलते हैं, let us now compare coefficient of x। अब ऊपर देखो, यहां पे x का कोफिशिएंट a है जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, और यहां पे कितना है 2pq, तो a is 2pq, so I have a equal to 2pq, वैल्यूज पुट कर दो, देखो हमारे पास p की वैल्यू भी है बेटा 6 और q की वैल्यू भी है 5, सो लेट्स पुट द वैल्यूज, सो आई गेट दिस एज 2 into 6 into 5, so 12 5s are 60, that is value of a। Now let us compare the constant term, is it all right? What is the constant term? Let's see, in the first one it's b and on the right side it's q², so I have b equal to q² and q you can see is 5, so this will be 5², so this implies value of b is 25, right? So a की वैल्यू कितनी आई 60 and b is 25। Let's take the options, all right? So a is 60, b is 25, so b option is correct। Got it? So if it is square of a quadratic expression, that's how we can obtain values of a and b, right?
look at this one more question now on polynomial equations of higher degree. Let's read the question first. If alpha, beta, gamma are roots of x cube minus x square minus 1 equal to 0, then we have to find the value of this expression. All right, and you can see this is a cubic equation. So let's see the solution for this. Again, we write the equation first. I have x cube minus x square minus 1 equal to 0. अब देखो इसमें ना x वाली टर्म मिसिंग है, थोड़ा प्रॉपरली लिखते हैं. इट इज लाइक 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 0 इंटू एक्स एंड माइनस 1 इक्वल टू 0. सो दिस इज द स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन इन दैट फॉर्म. अब इसके आपको 3 रूट्स दिए हैं, अल्फा, बीटा, गामा, एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस एक्सप्रेशन. तो उसके लिए हमें किन की जरूरत पड़ेगी? S1, S2, S3. तो पहले वो निकाल लेते हैं. अब याद है ना, पहली टर्म छोड़ के साइन लगाने हैं, माइनस प्लस माइनस. पता है गलती ना हो इसीलिए जैसे x वाली टर्म नहीं थी ना, तो ये टर्म लिखनी जरूरी है. अदरवाइज देयर इज अ टेंडेंसी टू मेक अ मिस्टेक और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ क्या मिस्टेक हो गई. ऑलराइट, तो S1 लिखते हैं हम. S1 वॉज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या था? माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन 1, दैट इज 1. S2 देखो, S2 का मतलब था हमारा अल्फा बीटा, दो का प्रोडक्ट एट ए टाइम और उनका सम था ना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. ये कितना था? C अपॉन ए. C देखो अब आपका 0 है, तो 0 अपॉन 1 इज 0. देन S3 वॉज तीनों का प्रोडक्ट एट ए टाइम, अल्फा बीटा गामा, इट वॉज माइनस डी अपॉन ए. राइट, सो माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन 1, सो दिस इज इक्वल टू 1. सो वी हैव दिस इंफॉर्मेशन कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 1 आ गई. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज 0 एंड अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है? 1. अब हम इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे. ऑलराइट, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस बीटा एंड सिमिलरली फॉर बीटा एंड गामा. तो 1 प्लस अल्फा, आई नीड दिस, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस, ठीक है, और फिर 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा और 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा. अब देखो, आप कहोगे मैम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करें, एलसीएम ले लें. अगर हम यहीं पे एलसीएम लेते हैं ना तो सॉल्व करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. उसको देखो इजी कैसे बना सकते हैं. ऑब्जर्व करो जरा एक बात, जैसे ऊपर अल्फा है ना, बेटा और माइनस नीचे माइनस अल्फा है. आप सोचो अगर ये ऐड हो जाते तो अल्फा कैंसिल हो जाता. ऐड कब होंगे? जब यहां पे हम इसमें 1 ऐड कर दें. अगर देखो, अगर हम इसमें ऐसे लिख लें तो अगर आप एलसीएम लोगे तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर से अल्फा हट जाएगा. सिमिलरली इन द सेकेंड टर्म what we can do is we can add 1 so that when we take LCM in the numerator beta will vanish. Similarly 1 plus gamma, so similarly I have 1 plus gamma upon 1 minus gamma plus 1. अब आपने अपनी तरफ से 1 plus 1 plus 3 ऐड किया है तो ऑब्वियसली हमें 3 माइनस भी करना है so that value of expression does not change. Now if you take LCM, what will you get? LCM लोगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल होके वी विल गेट 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा, 2 अपॉन 1 माइनस बीटा एंड 2 अपॉन 1 माइनस गामा एंड माइनस 3. गॉट इट. अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं, फटाफट देखो, 2 कॉमन ले लो. 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 अपॉन 1 माइनस बीटा और 1 अपॉन 1 माइनस गामा माइनस 3. या क्या, अब हम एलसीएम लेते हैं. ठीक है, तो अब हमारा वो लेंदी नहीं होगा क्योंकि न्यूमरेटर में अब अल्फा बीटा गामा आर नॉट देयर. ऑलराइट, नाउ वी कैन टेक एलसीएम. So I have 1 minus beta into 1 minus gamma, then 1 minus alpha into 1 minus gamma, then I will have this as 1 minus alpha into 1 minus beta and minus 3. Alright, now this is to be solved.
इसको सॉल्व करोगे देखो न्यूमिरेटर को, तो आपके पास ये आ जाएगा. ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व इट. आई डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम. सो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 3 प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. ठीक है, एक तो ये टर्म आएगी और एक आएगी -2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. और डिनोमिनेटर में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड देन वी विल हैव प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. तो ये टर्म्स आ जाएंगी और यहां पे है -3. अच्छा नीचे सॉरी एक और टर्म आएगी बेटा, जस्ट अ मोमेंट. इन द डिनोमिनेटर वी विल हैव वन मोर टर्म अल्फा बीटा गामा वाली. ठीक है ना, ये देखो, लेट मी राइट ओवर हेयर. सो इन द डिनोमिनेटर आई विल हैव माइनस अल्फा बीटा गामा ऑल्सो. जब ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, है ना, एक टर्म वो भी आएगी और -3. सो दिस इज सिंपल मल्टीप्लीकेशन एंड वी कैन राइट लाइक दिस. अब हम वैल्यूज पुट करते हैं. देखो ये वाला क्या है हमारा, दिस इज S2, ये S2 है, राइट. इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी हमारा डिनोमिनेटर में भी हमारा ये क्या है, S2 है बेटा. दिस इज ऑल्सो S2, ये भी S2 था, ये भी S2 है. फिर यहां पे देखो दिस इज S1, ये भी S1 है. तो अब हमें S1 पुट करना है, ये भी S1, ये भी S1. और यहां पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, S3. गॉट इट. लेट्स पुट. क्या क्या था देखो, S1 1 है, S2 0 है, S3 भी 1 है. पुट कर देते हैं. So I have 2 times 3 plus this was 0 minus 2 into 1 divided by 1 minus 1 plus 0 minus 1 and then minus 3. न्यूमिनेटर में क्या आ गया, 1 into 2 is 2 और नीचे -1 है तो it is -2 minus 3. That means answer would be -5. So this is going to be the value of the given expression. All right. So we just have to obtain these results. तो हमने ये वाले बेटा रिजल्ट्स यूज किए हैं और इसको सिंप्लीफाई करा गिवन एक्सप्रेशन को, ये वाले को. तो आंसर इज कमिंग आउट टू बी -5 विच इज ए ऑप्शन. इज इट ओके. सो दिस वाज द रिजल्ट. अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं. इसमें एक बात बतानी है जो, दैट इज डकार्टे रूल ऑफ साइन इन अ पॉलिनोमियल इक्वेशन. ऑल राइट. सो लेट्स गिव द हेडिंग. So we will now talk about Descartes rule of sign in polynomial equation. ये आपका डेकार्टे जो है, इट वॉज ही वॉज मैथमेटिशियन. पूरा नाम था रेने डेकार्टे. और पता है इसी के नाम पे हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन प्लेन. तो पूरी कार्टेशियन ज्योमेट्री जो है, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इट. ओके. तो ये जो कांटे हैं ना इसके नाम पे, उसी से बना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन प्लेन एंड सो ऑन. राइट. ऑल राइट. अब देखो इसमें पहला रूल क्या है. फर्स्ट रूल ये है इसमें, पहले तो हम इसके रूल्स लिखेंगे. इज इट ऑल राइट. तो व्हाट आर द रूल्स. पहला रूल ये होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स, maximum number of positive real roots of polynomial equation fx equal to 0 is equal to what? The number of changes is equal to the number of changes in sign, number of changes in sign from positive to negative and negative to positive in fx. समझ नहीं आया ना? एग्जाम्पल से समझते हैं. और एक बात और, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स बताता है कि ज्यादा से ज्यादा इतने पॉसिबल हैं, एटमोस्ट. एग्जैक्ट नहीं बताता ये रूल. इसीलिए ना इस रूल की बेटा लिमिटेशंस हैं.
बहुत कम जगह पे हम इस रूल को यूज कर पाते हैं, बिकॉज इट डजंट गिव अस एग्जैक्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव रियल रूट्स। मैक्सिमम मतलब एट द मोस्ट उतने हो सकते हैं, तो एक अंदाजा एक तरह से आप कह सकते हो देता है। लेट मी टेक अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, हम एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लेते हैं। मान लो सपोज मैंने पॉलिनोमियल इक्वेशन ली, एफ एक्स इज इक्वल टू से x4 माइनस 2x³ प्लस x² प्लस x माइनस 1। मुझे इसमें देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे। तो हमने क्या करना है, एफ एक्स के अंदर चेंजेस इन साइन देखने हैं। अब देखो, पहली टर्म का साइन है पॉजिटिव, फिर अगली टर्म का साइन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। चेंजेस देखो कितने हुए। पहला चेंज पॉजिटिव से नेगेटिव ये हुआ, दूसरा चेंज हमारा ये हुआ, दिस इज द फर्स्ट चेंज, दिस इज द सेकेंड चेंज। प्लस से प्लस में कोई चेंज नहीं है, फिर यहां पे चेंज है, दैट मीन्स थर्ड। तो 3 चेंजेस हुए ना साइन में इन एफ एक्स, सो दैट मीन्स मैक्सिमम पॉजिटिव रियल रूट्स जो हैं वो कितने होंगे आपके बेटा, 3 हो जाएंगे। एग्जैक्ट नहीं है ये, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे वो हमें पता चलता है। इसी तरह इसका दूसरा रिजल्ट देखो। दूसरा रिजल्ट होगा फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स, राइट, ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन fx equal to 0 is equal to the number of changes is equal to the number of changes in f of minus x from positive to negative and negative to positive। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, फिर से बात एग्जैक्ट की नहीं हो रही। मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा हमें यहां भी, तो वो होंगे नंबर ऑफ चेंजेस इन साइन किसमें, अब एफ ऑफ माइनस एक्स में, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब अगेन लेट अस टेक वन एग्जांपल। ऑलराइट, सपोज आई हैव से 2x5 माइनस x³ प्लस x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मान लो हमारे पास, अब देखो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स लेफ्ट साइड का पॉलिनोमियल हो गया 2x5 माइनस x³ प्लस x² माइनस 2। तो यहां से एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आया। ठीक है, अब हमें नेगेटिव रियल रूट्स के लिए चेंजेस किस में देखने हैं, देखो एफ ऑफ माइनस एक्स में देखने हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, नेगेटिव के ऊपर ऑड पावर है तो माइनस आएगा, माइनस 2x5, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस ही रहेगा और माइनस 2। अब देखो पहली टर्म का साइन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। चेंजेस कितने हुए, पहला चेंज ये है, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। पॉजिटिव टू पॉजिटिव में कोई चेंज नहीं है, पॉजिटिव से नेगेटिव में अगला चेंज है 2। तो 2 चेंजेस हो रहे हैं, इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ, ऑलराइट, नेगेटिव रियल रूट्स, हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स हेयर वुड बी इक्वल टू 2। तो एग्जैक्ट नहीं पता चले हैं, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव रियल रूट्स कितने होंगे बेटा, इसमें 2 हो जाएंगे। एक और इसमें रिजल्ट देखो कि अगर मान लो थर्ड रिजल्ट हम ये कहते हैं, इफ there is no change, if there is no change in sign from positive to negative, right, or negative to positive in fx or f of माइनस एक्स, और नहीं बल्कि एंड कहना चाहिए, दोनों में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इन एफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स, देन ऑल रूट्स ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी। ठीक है, ये
और fx इक्वल टू 0 कैसी इक्वेशन है? ऑब्वियसली पॉलिनोमियल इक्वेशन. अगेन लेट मी टेक एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड. सपोज आई हैव fx इक्वल टू, या पहले इक्वेशन लिखते हैं. मान लो हमारे पास इक्वेशन यहां पे है x4 प्लस एक्स स्क्वेयर और प्लस 1 इक्वल टू 0. अब देखो इसमें हमने देखना है कि क्या कोई पॉजिटिव नेगेटिव रियल रूट्स हैं या सारे के सारे इमेजिनरी हैं. ठीक है, 0 तो इसका रूट नहीं है, आपको पता चल रहा है. x 0 पुट करोगे तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0. व्हाट इज fx नाउ? लुक हियर, f of x इज इक्वल टू x4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1. अब इसमें तीनों प्लस 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 है, तो क्या कोई चेंज है साइन में? नो. तो इट हैज नो चेंज इन साइन, राइट? साइन में कोई चेंज नहीं है. f ऑफ माइनस एक्स में देखते हैं. व्हाट इज f ऑफ माइनस एक्स? अब देखो इवन पावर्स है तो वही आएगा. अगेन इट वुड बी x4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, राइट? तो फिर से तीनों प्लस प्लस प्लस. अगेन देयर इज नो चेंज इन साइन. ठीक है, साइन में बेटा फिर से कोई भी चेंज नहीं है. अब देखो हमने रिजल्ट में क्या लिखा है. लेट अस सी. If there is no change in sign from positive to negative or negative to positive in both fx and f of minus x, इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स भी 0 हो गए, मैक्सिमम नेगेटिव रियल रूट्स भी कोई नहीं है. तो इस और 0 तो वैसे ही इसका रूट नहीं है, तो ऑल द रूट्स आर इमेजिनरी. तो इसके ऑल 4 रूट्स, डिग्री 4 में इक्वेशन है तो मतलब ये जो हमारी इक्वेशन है इसके ऑल 4 roots are imaginary. Got it? So all the roots are imaginary. ये हो जाएगा. Got it? Let's do one question based on this rule. Okay, so these are called as Descartes rule of sign. Now look at this question. इसमें देखो क्या बोल रहे हैं. Maximum number of, read the question carefully. मैक्सिमम नंबर ऑफ, उन्होंने मैक्सिमम पूछा है, एग्जैक्ट नहीं पूछा. मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स चाहिए हमें इस इक्वेशन के. x4 माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0. सो लेट्स डू द सोल्यूशन फॉर दिस. ऑल राइट, इसका देखो सोल्यूशन करते हैं. क्या इक्वेशन है? देखो x4 माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो लेफ्ट साइड पे पॉलिनोमियल को fx से डिनोट कर लो. इट इज x4 माइनस 4x और माइनस 1. हमें नेगेटिव रियल रूट्स चाहिए, तो हमें चेंजेस इन साइन किस में देखने हैं? f ऑफ माइनस एक्स में. तो लेट अस ऑब्टेन f ऑफ माइनस एक्स. ये हो गया आपका x4 माइनस माइनस प्लस 4x और माइनस 1. अब देखो पहली टर्म में प्लस प्लस माइनस, तो सिर्फ एक ही चेंज है ना यहां पे प्लस से माइनस में. देयर इज वन चेंज. तो दिस इंप्लाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स. ठीक है, कितने हो गए? 1. तो ऑप्शन हमारी आ गई सी. सॉरी, ऑप्शन वुड बी सी, राइट? तो ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव रियल रूट सी होंगे. अगर अब आप पूछो कि मैम ठीक है आपने बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स हमारे 1 आ गए, अगर हमें इसके एग्जैक्ट पूछे होते तो पता है जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक है या और हायर डिग्री की है ना, उसमें एग्जैक्टली रूट्स कैसे हैं उसके लिए कई बार हमें कैलकुलस के कुछ रिजल्ट्स की जरूरत पड़ती है. जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, बाकी डिटेल में इस टाइप की इक्वेशंस के अगर हमें एक्चुअल में कितने कौन से रूट्स हैं चाहिए होते हैं, दैट वी विल डू व्हेन वी कम टू द कैलकुलस पार्ट. अब देखो थोड़ा सा इसको लेते हैं. आई वुड लाइक टू टेल यू ओवर हेयर. जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या है, वी हैव x4 माइनस 4x. दिस इज द इक्वेशन. x4 माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, यही थी ना? हाँ. तो इसके हमें रूट्स देखने हैं कि एग्जैक्ट कितने हैं. तो जैसे हमने f ऑफ x को लिया x4 माइनस 4x माइनस 1. अब पता है क्या, सबसे पहले जैसे x को 0 पुट करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है. f ऑफ 0 माइनस 1 आ गया, मतलब नेगेटिव है. 0 पे वैल्यू माइनस 1 है. अब थोड़ा सा आगे और पीछे पुट करके देखते हैं क्या वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है या वही रहती है. फॉर एग्जाम्पल सपोज आई टेक x एज माइनस 1.
अब नोटिस करो f ऑफ -1 कितना आ जाएगा, ठीक है ना, ये फंक्शन है हमारा, इसमें हम x को ले रहे हैं -1, तो ये हो गया -1 की पावर 4 1, दिस विल बी +4 -1, ये 4 आ गया। देखो ये हमारा नेगेटिव था, ये पॉजिटिव आ गया। अब नोटिस करो एक बात, लेट मी ड्रॉ दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, यहां पे हम लेते हैं, हाँ जी। अब देखो जैसे ये हमारे पास 0 है, 0 पे वैल्यू आप देख रहे हो कितनी है, -1, तो ये अगर -1 है तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू इज -1, और -1 पे हमारे पास वैल्यू कितनी है 4, 1 2 3 4, तो ये पॉइंट आ गया। अब इसमें ना कॉन्टिन्यूटी भी यूज होगी, आपको पता है ये जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x, तो अगर कॉन्टिन्यूअस है ना तो यहां पे देखो इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, ये कॉन्टिन्यूअस है तो ये ग्राफ ऐसे आएगा ना, तो एक बार 0 से और 0 और -1 के बीच में x एक्सिस को कट कर रहा है, अपोजिट साइंस के हैं तो एक बार ही तो x एक्सिस को कट करेगा, तो आप देख रहे हो ये हमें क्या मिल गया, दिस इज आर नेगेटिव रियल रूट। एग्जैक्ट क्या है वो हमें नहीं पता चला, पर वो रूट -1 से 0 के बीच में है वो पता चल गया। अब पता है आगे क्या होगा, उसके लिए हम क्या किया करते हैं, जैसे मैंने कहा कैलकुलस यूज होता है ना बेटा, तो यहां पे देखो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें, ठीक है, f' देखो क्या आ रहा है, तो इट इज 4x³ -4, तो f' को अगर आप 0 पुट करते हो तो हमारे पास x³ 1 आ गया, मतलब रियल वैल्यू x की आ गई 1, मैक्सिमम मिनिमा याद है ना। सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं विच इज इक्वल टू हाउ मच, 12x², राइट, तो 1 पे अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू देखोगे क्या आ रही है, 12, विच इज पॉजिटिव। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो 1 पे इसकी वैल्यू मिनिमम है। अब हम देखते हैं f ऑफ 1 है क्या, ठीक है, जैसे हमने f ऑफ 0 निकाला, f ऑफ -1 निकाला, लेट मी ऑब्टेन हेयर f ऑफ 1। f ऑफ 1 क्या आ रहा है, देखो 1 -4 -1 विच इज -4 विच इज अगेन नेगेटिव। अब नोटिस करो 1 पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई -4, ये वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब यहां पे 1 पे अगर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है तो मेरे पास ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है। अब एक 2 पे देखते हैं जरा, व्हाट इज f ऑफ 2, फंक्शन क्या था, x रेस पर 4 -4x -1, तो 2 रेस पर 4 -4 इंटू 2 -1, ये देखो 16 -9 7, तो आप देख रहे हो 2 पे फंक्शन की वैल्यू बढ़ के आगे जाके, ठीक है, कहीं 7 आएगा, तो मान लो यहां पे है। अब फिर से हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो यहां पे ना बेटा ये ग्राफ अब ऐसे जाएगा, 0 से 2 के बीच में एक बारी x एक्सिस को फिर से कट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि 1 पे वैल्यू नेगेटिव है, 2 पे वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो एक बार बीच में x एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। तो यहां पे हमारे पास नेगेटिव रियल रूट 1 आ गया, और यहां से हमारे पास आ रहा है 1 पॉजिटिव रियल रूट, ये आएगा, एक पॉजिटिव रियल रूट आ जाएगा। अब आप कहोगे मैम आगे कभी कट करेगा, अब देखो हमारे पास एक ही पॉइंट ऑफ मिनिमा आया है, ओनली 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा, कोई मैक्सिमा का पॉइंट नहीं है, मतलब ऊपर प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है, ग्राफ दोबारा टर्न करना ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन थी x4 - 4x - 1 इक्वल टू 0, इसका हमें क्या पता चला, 1 नेगेटिव रियल रूट, ठीक है, जो कि बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल -1 से 0 को। एक इसका हमें मिला 1 पॉजिटिव रियल रूट, एक पॉजिटिव रियल रूट मिला है, ठीक है, जो किस में लाई कर रहा है, 1 से 2 में लाई कर रहा है। अब डिग्री तो देखो 4 है ना, तो 4 रूट्स होने चाहिए, तो दोबारा ये पैराबोला, ये सॉरी इट्स नॉट पैराबोला, ऑलराइट, वो तो डिग्री 2 में होता है। ये जो यू शेप हमारी कर्व है ये दोबारा एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है, अब कर्व दोबारा टर्न कर नहीं रही है, तो इसका मतलब बाकी के हमारे 2 रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी। सो रिमेनिंग
roots are imaginary. ठीक है ना? तो अगर आपने एग्जैक्ट देखना था कि क्या कैसे कैसे इसके रूट्स हैं, तो इसमें हमारा कैलकुलस का यूज होता है. तो एक नेगेटिव रियल रूट हमें मिला -1 से 0 के बीच में यहां पे. ऑलराइट, दिस एक हमें पॉजिटिव रियल रूट मिल रहा है और 2 इमेजिनरी रूट्स होंगे, क्योंकि डिग्री 4 है तो 4 रूट्स होंगे. पर हमारा क्वेश्चन यही था अभी कि मैक्सिमम, तो वो तो डेकार्टे रूल ऑफ साइन से ही पता चल गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स आर 1. Okay, so that is all what we have to do here. So we have covered almost everything which is required for JEE mains in quadratic equations. All right, so now you need to practice lecture wise all the questions. All right, hope you enjoy the benefit of our courses beta. All right, thank you and bye bye.